السلام علیکم خواتین و حضرات، آئیے دیکھتے ہیں اسب حال. آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. اس ہفتے انڈیا سے فلم ریلیز ہوئی ہے شاہ رخ خان کی راون، جو سپر ہٹ گئی ہے. اس کی ٹکر میں پاکستان میں 3 فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں. ایک آج ریلیز ہو گئی ہے جس کی مین کاسٹ میں ابرار الحق ہیں. اس فلم کا نام ہے پاکستان بچاؤ. ایک فلم کل ریلیز ہوگی نواز شریف شہباز شریف کی کرپشن مکاؤ. اور ایک فلم 30 اکتوبر کو عمران خان کی سینما سکوپ ریلیز ہو رہی ہے، اس کا نام ہے دونوں کو بگاؤ. تینوں فلمیں یعنی ملک بچاؤ، کرپشن مکاؤ اور دونوں کو بگاؤ، تینوں فلموں کے پوسٹر میں ہیرو کا ایک ہی ایکشن ہے، ڈم. یہ جو پوسٹر ہے یہ فلم کی سٹوری سے میچ نہیں کرتا، کیونکہ ملک دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا اور ہیرو نے صرف ایک کوئی انگل اٹھائی ہوئی. ناظرین، ویسے ابرار الحق کی فلم کی سٹوری تو کھول کے سامنے نہیں آئی، مگر اس کا گانا بڑا ہٹ ہے. کن کن جانا ریلیاں نال اساں تے جانا ریلیاں نال، کن کن جانا ریلیاں نال، پنڈ تے پراؤ کوئی تے آؤ، پنڈ تے پراؤ کوئی تے آؤ، کن کن جانا ریلیاں نال اساں تے جانا ریلیاں نال. اور جدوں ماڑیاں نے کڈنی سی ریلی مخالفاں جلوس رکھ لے، کن کن جانے اساں تے جانے ریلیاں نال، کن کن جانے ریلیاں نال اساں تے جانے ریلیاں نال. عزیز صاحب، مجھے تو لگتا ہے چوتھی فلم کی بھی تیاری ہے اور رحمان ملک صاحب اس کے ویلن جو ہیں وہ بھی کچھ فرما رہے ہیں. ایک منٹ، ناظرین نوری نعت بھی نکل آیا. کیا ہے وہ؟ کہتے ہیں جی پنجاب میں 52% کرپشن ہے، نواز شریف بھاٹی چوک پر مناظرہ کر لیں. کیا بھائی رحمان ملک صاحب، پارٹی چوک میں مناظرہ نہیں ہوتا جناب، مداری ہوتی ہے. میرا خیال ہے آپ کہیں مداری لگانا چاہ رہے ہیں. ویسے اگر آپ کو مناظرے کا شوق ہے تو پارٹی چوک کو دفاع کرے، لیاری جا کے ذوالفقار مریا صاحب سے مناظرہ کرے، جنہوں نے قرآن شریف سر پہ رکھ کے کہا ہوا کہ آپ ملک توڑنا چاہتے ہیں اور غدار ہیں. لوگ آپ کا وہ والا مناظرہ دیکھنا چاہتے ہیں جناب. ویسے رحمان ملک صاحب کا بھی اس دکاندار والا صاحب ہے نا، جس کے پاس کو گاہک جا کے کہے پاجی ماش کی دال ہے، اس کے پاس ہوتی نہیں تو کہہ دیتا نا ماش کی دال نہ کھانا، اس سے قبض ہو جاتی ہے. آپ مونگی کی دال لے کے جائیں، وہ بہت اچھی ہوتی ہے. کوئی شیو کرنے کے لیے ریزر مانگ لے اور اس کے پاس نہ ہو تو بھائی جی ریزر سے ٹک لگ جاتا ہے، آپ ریگ مار سے شیو کیا کریں. اگر کوئی مچھر مار سپرے مانگ لے تو اس کو کہہ دیتا ہے بھائی جی اتنے پیسے کیوں آیا کر دیا، تاڑیاں مار مار کے مچھر مارے. مچھر بھی مار جائے گا اور رونق بھی لگی رہے. قربانی کے جانوروں کے شہر سے باہر مراکز سے شہریوں کو پریشانی. جانور گھر لانے کے لیے لوڈر کا کرایہ 2 سے 5,000 تک وصول کیا جا رہا ہے. ہائے 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 یار، یہ قربانی کے جانور کے حوالے سے بھی عوام پہ بڑا ہی ظلم ہو رہا ہے. اتنی دور بکر منڈیاں بنا دی ہیں، ادھر 40,000 کا بکرا بندہ لڑ لڑ کے 35 کا کراتا ہے، وہ گھر پہنچ کے پھر 40 کا ہو جاتا ہے. اتنی دور بکر منڈیاں بنا دی ہے کہ ادھر پہنچتے پہنچتے بندہ خود بکرا بن جاتا ہے. بکرا الٹا بندے کا پوچھ رہا ہوتا ہے بھائی جی کی لینا جی، یا تو ادھر سے پھر بکرا لانے کا بھی کوئی بندوبست کرتا. کیا بندوبست کرتے ہیں عزیز صاحب؟ وہ اللہ لوگ کے ادھر پاس بکر منڈی کے کوئی ٹی سی ایس آفس بنا دیتے، بندہ بکرا خرید کے ٹی سی ایس کرا دیتا ہے. ٹی سی ایس سستا پڑتا ہے، رونق بھی لگی رہتی. ادھر ڈاخانے میں بکرے کو مورے لگ رہی ہوتی، ڈھم ڈھم. ڈاکیے کے تھیلے سے بھی آوازیں آ رہی ہوتی. جتنی دور بکر منڈیاں ادھر سے تو پیدل بکرا ہے تو گھر پہنچنے کا تو بلی بن گیا. یا چائنا والوں کو ریکویسٹ کر کے پلاسٹک کے بکرے منگوا لیتے، بندہ ادھر سے بکرا خرید کے اس کی ہوا نکال کے فولڈ کر کے جیب میں ڈال لیتا ہے، گھر آ کے پھر پمپ سے ہوا بھر کے تو بکرا تیار ہو جاتا ہے. نہیں یہ نہیں طریقہ ٹھیک یار، اس بکرے میں سے گوشت نہیں تھا نکلنا، میری ہوا ہی نکلنی تھی. یا چائنا والوں کو کہہ کے ویسے فٹنگ والا بکرا بھی منگایا جا سکتا ہے، ادھر سے ساری فٹنگ اس کی کھول کے تھیلے میں ڈال کے بندہ اٹھا لے بکرا، گھر آ کے پھر بکرا فٹ کر لے. رینچ پکڑا جرا بکرا فٹ کر لو، لیگ پھڑا اپنی نہیں بکرے کی، بے وقوف.
40 आप, मगर इसमें भी यार जिन्होंने 2-2 बकरे खरीदने थे उनको बड़ा नुकसान होना था। कैसे? चिट्टे बकरे की सिरी काले को फिट हो जानी थी, काले के पावे चिट्टे को फिट हो जाने थे। चिट्टे बकरे ने खुद शोर मचा देना था, मेरी चिट्टी पूछल थी, मुझे नहीं पता मेरी चिट्टी पूछल लगाओ, मैंने नहीं ऐसी, मैंने कुर्बानी नहीं होना जाओ। अपनी कुर्बानी के चक्कर में मेरी ब्यूटी ना खराब करो। माहिरीन का कहना है कि दर्जा हरारत 18 डिग्री तक आने पर डेंगू का खात्मा हो जाएगा। ये भी माहिरीन की भुल फहमी है। इस साल डेंगू जितना हिट हुआ है, अल्लाह माफ करे, इतना तो शाहरुख हिट। डेंगू को बड़ी आमदन हुई है इस साल, उसने बंदोबस्त कर लिया हुआ है, खुडों में अपने वो हीटर लगा बैठा हुआ है, गर्म टोपियां, स्वेटर, गर्म जुराबें खरीद ली हुई हैं उसने। तुम देखना डेंगियों की खुडों में गुफ्तगू क्या हो रही होनी है। अम्मी मुझे स्वेटर देना, मैंने डंग मारने जाना है। खबरदार अब तो सुखने डाला हुआ है, बाहर ना निकलना, बड़ी ठंड है। अम्मी फिर जैकेट ही दे दो। खबरदार, जैकेट तुम्हारे बाप की है, उसने भी डंग मारने जाना है, जैकेट ना पहनना। चलो रहने तो कोई बात नहीं, मैं हीटर वाली गाड़ी में निकल जाता हूँ। जितनी देर का डेंगू इधर फिर रहा है उसको तो 100 तरीके आ गए होंगे बाहर निकलने के। खूबरू फिल्मी अदाकारा रीमा आज 40 की हो गई। हाय हाय हाय, देखो इस मुल्क में सकाफत का क्या हाल हो गया हुआ है। आलू भी 40 की और रीमा भी 40 की। वो 40 साल की हो गई है। अच्छा 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 अच्छा। वैसे यार मेरा ख्याल है ये पहली फनकार है जिसने अपनी उम्र 40 बताई है, वरना मीरा पिछले 35 साल से 25 साल की है। मैंने सुना है कि साफी को उसने फिर उम्र बताई है 25 साल, तो फिर उसने कहा जी कि आप पिछले 30 साल से यही उम्र बता रहे हैं, आप अपना हेड साफ कराएं, आपकी केसेट फंस गई हुई है। नाज़रीन, खबरों पर तबसरा जारी है, लेकिन वक्त है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। मैंने तो सुना है मीरा ने अपनी शनाख्ती कार्ड के उम्र वाले खाने में लिखा हुआ है, दिल होना चाहिए जवान तो उम्र च की रखे है। कर्जों के बोझ तले दबी वफाकी हुकूमत ने 4 नई वजारतों का ऐलान कर दिया। मजीद 4 वजारतें? अल्लाह फाड़, इसमें अफसोस वाली क्या बात है यार। और यार पहले ही बैंकों के बाहर पेंशनों के लिए बाबे बेचारे मर रहे हैं और ऊपर से 4 नई वजारतें बना दी हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, सालाना सिर्फ 240 करोड़ रुपए लगेंगे इन 4 वजारतों पे। ओ मेरे अमाल का, इन 4 वजारतों की जगह 4 डैम बना देते, अखराजात में इजाफे की बजाय को बिजली में इजाफा हो जाता। नहीं नहीं यार, ये चारों वजारतें बहुत अहम थी, इन 4 वजारतों के बगैर मुल्क नहीं चल रहा था यार। कौन कौन सी है ये 4 वजारतें? वैसे सबसे इंपॉर्टेंट वजारत तो तुम देखो कि लोक विरसा, कौमी विरसा, ये थोड़ी अहम वजारत है। नहीं तो इन्होंने विरसा हमारा छोड़ा कौन सा है? लोड शेडिंग, बम धमाके, करप्शन, क्या करेंगे? म्यूजियम बना के उसमें एक फाइल रखेंगे। ये एक 200 अरब की करप्शन का केस था जिसमें सारे गवाह दौड़ गए थे। उसके साथ वाले खाने में एक बम रख देंगे, ये वो बम था जो बार बार चला और उस पे बार बार रहमान मलक ने नोटिस लिया। उसके साथ वाले खाने में एक बल्ब रख देंगे और उस पे लिख देंगे कि ये वो बल्ब है जिसको 2011 में आखिरी बार जलते हुए देखा गया। यार फूड सिक्योरिटी की वजारत बहुत अहम है। आहा, बड़ी अहम है, बड़ी अहम है फूड सिक्योरिटी। फूड बचा कौन सा है जिसकी सिक्योरिटी करने लगे हैं ये? या मेरा ख्याल है जो 3-4 रोटियां बच गई है ना, उसको ये वजीर साहब स्कोर कर लेंगे कि ये मैंने नहीं किसी को देनी, दौड़ जाओ यहाँ से। नहीं यार, इसके अलावा नेशनल रेगुलेशन एंड सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बगैर मुल्क नहीं चल रहा था यार, तुम समझने की कोशिश करो। और ये वजारतें हैं या किसी गैस की दवाइयों के नाम है? ये कौन सी वजारतें नहीं निकाल लिए? इनके लिए तो वजीर साहब को ट्यूशन रखनी पड़ेगी। मास्टर पहले 6 महीने लगा के वजारत का नाम याद कराएगा, उसके अगले 6 महीने फिर वो बताएगा कि इस वजीर के काम क्या क्या है। उसके अगले 6 महीने फिर वजीर साहब मास्टर से पूछेंगे कि भाई जी इस वजारत में मीठा कितना को है। हाँ जाहिर है यार, वजारत को मीठा तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारे मुर्शद ने ऐसी तो फीकी वजारतें तो नहीं ना देनी। उतनी देर में आगे इलेक्शन आ जाने और वजीर खत्म हो जाने। ये 4 वजारतें नहीं 4 शरारतें हैं। इसके बाद को वजारत आ जाएगी, वजारतें टापो टाप भाजना सैंड खिचतरू, मिनिस्ट्री ऑफ गुलगपाड़ा एंड बिदचवार।
इस तरह की मिनिस्ट्रियां होंगी ना। आगे जिस तरह की सियासी कशमकश जा रही है, एक और मिनिस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन तो है ना, अगर मिनिस्ट्री फॉर्मेशन एक बना दी जाए। बहुत अच्छा। हर आए रोज नई नई मिनिस्ट्रियां बनाना कोई मामूली काम तो नहीं है ना यार। इस मिनिस्ट्री की भी 2 शाखें होनी चाहिए, एक मिनिस्ट्री बनाए और एक उसका नाम रखे। मिनिस्ट्री का नाम रखना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा अजीज साहब, आपको याद है पिछले हफ्ते आपको मैंने एक इश्तिहार दिखाया था निसान ट्रक का, जिसमें क्रैश लैंडिंग हो रही थी एक एयरप्लेन की, और वो ट्रक लैंड करवाता है जहाज हाँ, जिसके जहाज के अगले पहिए नहीं थे खुले और वो ट्रक में मुद्दा हो गया। एग्जैक्टली। और मेरे पास अभी ओरिजिनल एक क्रैश लैंडिंग की वीडियो पड़ी हुई है जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, और ये इश्तिहार या कमर्शियल नहीं है। अच्छा जी, दिखाओ जरा। ये लें। हाय हाय हाय। अच्छा अजीज साहब, इसका भी टायर नहीं खुला, फ्रंट व्हील जो है ना वो नहीं खुला। अच्छा, ये ईरानी एयरलाइन है। वाह जी वाह। ये देखो, और अभी तक नहीं खुला यार टायर। ये देखो, और लैंड कर गया वो। होए 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 होए, तो आगे जाके क्या करेंगे? ये देखो, अभी देखते जाएं। इसी तरह जा रहा है। होए 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 होए, या अल्लाह खैर कर ले। बड़ा मुश्किल होता है यार, अगला टायर ही ना खुला और बंदा लैंडिंग कर ले। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी बाबे के अगले दंद ना हो और वो बोटी खा रहा हो। मेरा ख्याल है इस जहाज में पायलट नहीं बैठा हुआ, कोई लाहौर का लड़का बैठा हुआ जिसे वन व्हीलिंग का तरीका आता है। अच्छा अजीज साहब, अगली वीडियो देखिए, वो भी हमारे व्यूअर ने आपके तबसरे के लिए भेजी है। दिखाओ। ये ले। ये देखो यार, ये सारा यूरोप, सारा अंग्रेज पाकिस्तान के खिलाफ हो गया हुआ। क्यों? हर दूसरे दिन इस तरह की हरकत करके हमें छेड़ते हैं। इनको इस तरह क्या वॉशिंग मशीन चलाने की जरूरत है? इनके पास अपनी बड़ी बिजली है, ये सिर्फ हमें चढ़ाते हैं कि साइकिलें चला चला के वॉशिंग मशीनें चलाओ। तुम्हें याद है एक दफा एक बंदा साइकिल के साथ वाटर पंप चला रहा था और पानी निकाल रहा था। ये मुझे तो लग रहा है ये हमारी खवातीन की साजिश है, चूंकि इधर सिर्फ मर्द हजरात बेचारे साइकिल चलाते हैं। अब कितना अजीब सा रवाज पड़ जाएगा। ये अचार कपड़े धोने हैं, ये अचार पैडल तो मार दो। ये अभी मैल नहीं निकली, जरा तेज चला साइकिल। वही थापा जो कपड़ों को पड़ रहा होता था वो अब खामदों की कमर में पड़ेगा। तेज चला, तेज चला। अजीज साहब, एक वीडियो और है, वो भी देख लें। दिखाओ दिखाओ ये लें। यार ये तो बहुत बुरी बात है भाई। ये ऊंट नहीं, ये पाकिस्तानी लीडर हैं, और वो जो बेचारा खड़ा कर रहा है वो पाकिस्तानी अवाम है। वोट दे के लीडर को खड़ा करती है, जब वो पांव पे खड़ा हो जाता है तो अवाम को लत कट मारता है। वो पड़ी हुई है अवाम। इसे जनरल नॉलेज की लैंग्वेज में कहते हैं होर चुपो। अच्छा जी, ये खबर है, उस पर भी आपका तबसरा चाहिए अजीज साहब। हामिद करजई का कहना है कि खबर गलत अंदाज में पेश की गई, हम जंग में पाकिस्तान की मदद नहीं करेंगे। हाय मेरे अमाल का करजई साहब, ये क्या किया? अब आप मुकर गए जनाब। आपकी हलाशेरी पे हमने अमेरिका के साथ जंग रख ली हुई थी। जंग रख ली हुई थी। कार्ड भी छपवा लिए थे, बल्कि तकसीम भी कर लिए हुए थे। अब हमारी बरादरी में हमारी कितनी बेइज्जती होगी कि देखे यार इन्होंने कार्ड दे के तो तारीख बदल लिया। अब उस दिन भी जिक्र कर रहे थे ना कि करजई साहब का कोई एतबार नहीं है, सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कह देते हैं। हाय हाय हाय, इस तरह का बंदा दूसरे मोहल्ले में जाके पंचायत का चौधरी होता है और अपने मोहल्ले में किसी के दरख्त से शहद उतारता हुआ पकड़ा जाता है। फिर मोहल्लेदार इसको सजा वाला क्या देते हैं, इसको लटा के 50 मक्खियां लड़वाओ। अखियां चीखना शुरू कर देती है, सानू इहदे नाल लड़ाउण डे, साडे कोल नमकीन शहद बनवाउणा है। इस तरह के बंदे अक्सर मस्जिद की घड़ी उतारते हुए छितर खा लेते और फिर कहते हैं भाई जी मैं चोर तो नहीं, असल में मुझ पे बुरा वक्त आया हुआ था, मैंने सोचा मस्जिद की घड़ी घर लगाऊं, शायद अच्छा वक्त आ जाए। इस तरह के थानेदार चोर को मुर्गा बनाने का तरीका बताने के लिए खुद कान पकड़ लेते हैं और पीछे से चोर दौड़ जाता है और फिर उसे नीचे से देख के शोर मचा रहे होते हैं, दौड़ गया जी, दौड़ गया जी।
नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना है एक छोटा सा वक्फा। पास से अल्लाह देता कह देता है भाई जी मैं चोर फाड़ ली ना, तुसी कान फड़ी रखो। एडा तो वड्डा करजाई। यार भा जुनैद, ये जो पेंशन लेने वाले बुजुर्ग बेचारे हर महकमे के खज्जल हो रहे हैं, और ये 2-3 दिन से सैकड़ों रेलवे के मुलाजमीन रिटायर बेचारे बुजुर्ग एक बैंक के सामने सड़क के ऊपर डेरे डाल के बैठे हुए थे, और फिर उनमें से एक बंदा बेचारा एक बुजुर्ग फौत हो गया। उसके बाद उनको कुर्सियां दे दी गई कि आप अब कुर्सी पे बैठ जाया करें जनाब। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? लाशें इसी तरह उठेंगी, फिर ही हुक्मरानों को होश आया करेगा? यार किसी भी महज़ब माशरे के लिए किस कदर मकरू मंजर था वो, जब ये हम टीवी स्क्रीनों पे देख रहे थे कि बैंक के बाहर सैकड़ों की तादाद में पेंशनर्स यानी सर्दी में लेटे हुए हैं, और उन्हीं पेंशनर्स यानी रिटायर्ड मुलाजमीन में एक बेचारी बूढ़ी खातून भी वहां लेटी हुई थी, ऊपर तन पे चादर ओढ़ के। यानी पूरे 17 करोड़ आवाम में से किसी एक ने भी एक लम्हे के लिए भी ये महसूस नहीं किया कि ये मेरी माँ भी हो सकती है, ये मेरी बहन भी हो सकती है। हाय हाय हाय, बिल्कुल ही बेहिसी छा गई हुई है। यार तुम देखो ना कि वो शख्स जो पेंशन के इंतजार में बैंक के बाहर दम तोड़ गया है, वो शख्स बेचारा जाते जाते भी हम मीडिया पर्सन्स के लिए लच्छेदार गुफ्तगू करने के लिए अपनी रेटिंग बढ़ाने का एक मौका दे गया। हाय हाय हाय, एक मिनट ठहर जाओ, मेरी एक पहले बात का जवाब दो। क्या उस पेंशनर की मौत की तनहा जिम्मेदार हुकूमत पाकिस्तान है? क्या उसकी मौत की तनहा जिम्मेदार जो है वो रेलवे का महकमा है? क्या उसकी मौत की जो तनहा जिम्मेदार है वो बैंक इंतजामिया है? ईमानदारी से जवाब दो, क्या उसकी मौत के हिस्सादारों में, उसके जिम्मेदारान में और कोई शरीक नहीं है? क्यों नहीं है? सारे जिम्मेदार हैं, हम सब जिम्मेदार हैं। उसका वो बेटा जो उसकी लाश पे आके अपना माथा पीट रहा था, वो उसको ये पता नहीं था कि मेरा बूढ़ा बाप सारी रात का बैंक के बाहर बैठा हुआ है। उसके महल्लेदार, उनको नहीं था पता कि यार यहाँ एक बुजुर्ग रहता है और वो उस बेचारे के पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, और वो 3-4 हजार लेने के लिए बैंक के बाहर बैठा हुआ है सारी रात। असल बात यह है कि पूरा माशरा जिम्मेदार है। हमारी जो माशरती बेहिसी है, इस पर हमें बात करनी चाहिए। इस तरफ तो भाई जी अब हम इसलिए नहीं आते कि अपने गिरेबान में झांकेंगे तो शर्मिंदगी होगी और क्या होगा। यार तुम ये देखो ना कि तमाम चैनल्स पर, तमाम अखबारात में एक शोर मचा हुआ नजर आ रहा है। यानी पूरे मुल्क में एक तकलीफ की सी कैफियत है कि हमारी रेलवे बंद होने जा रही है, तमाम ट्रेनें जो हैं वो जैम हो चुकी हैं, खड़ी हो गई हैं। लेकिन एक शख्स जिसको इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आना चाहिए था, जिस शख्स को सबसे ज्यादा तकलीफ में नजर आना चाहिए था, वो पूरे मंजर में सिरे से गायब है, और वो है वफाकी वजीर रेलवे। क्या उसका काम सिर्फ ये रह गया कि वो हर 2-3 महीने के बाद टीवी स्क्रीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में तशरीफ लाएं और हुकूमत से मुतालबा करें कि जनाब रेलवे को या तो बंद कर दें या हमें 10 अरब रुपए इनायत फरमा दें? और उस वजीर रेलवे की दलेरी देखो कि वो मीडिया के कैमरे के सामने आके दलेरी से कह देते हैं कि भाई जी रेलवे को बंद कर देना चाहिए। कई मुल्क ऐसे भी हैं जो रेलवे के बगैर चल रहे हैं। यार हैरत होती है कि इस मुल्क में हुकूमत नाम की या गवर्नेंस नाम की कोई चीज है। यानी क्या इस बात पर कोई एतबार और एतमाद करने के लिए तैयार है कि एक महकमे का बाकायदा वजीर है जिस पर लाखों रुपए माहाना खर्च हो रहे हैं, और उसे ये तक नहीं पता कि जब रेलवे चल रही थी उस वक्त कितने अखराजात थे, और आज जब रेलवे ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है तो उतने ही अखराजात कहां जा रहे हैं? वजीर रेलवे को कुछ होश नहीं है। यह मेरी इत्तलात के मुताबिक जब तमाम ट्रेन पूरी तरह फंक्शनल थी, उस वक्त पाकिस्तान रेलवे को हर 3 महीने के बाद 40,000 लीटर मिट्टी का तेल मुहैया किया जाता था, सिर्फ ये लालटेने और सिग्नल्स को रोशन रखने के लिए। और आज जब तमाम ट्रेनें बंद हो चुकी हैं तो तेल की मिकदार उतनी है जो फराम की जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं कि तेल कहां जा रहा है। यार अब रेलवे मुसाफिरों को 7-7, 8-8 घंटे इंतजार करना पड़ता है, इसलिए उनका दिल लगाने के लिए रेलवे अफसरान जो है ना, वो क्रूली करके मिट्टी के तेल की मुंह से आग निकाल दिया। अच्छा चलो, उसका तो ये इस्तेमाल हो गया, लेकिन जो डीजल है जो ट्रेनें चलाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, सारी ट्रेनें बंद पड़ी हैं। रोजाना 3 लाख लीटर डीजल कहां चला जाता है ये बता दो। यार कुछ अफसर मिट्टी के तेल की क्रूली करते हैं और कुछ डीजल की क्रूली करते हैं। गाड़ियां नहीं जैसे कुछ पेट्रोल पे होती, कुछ डीजल पे होती है, इस तरह अफसर भी ऐसे ही होते हैं। यार तुम यकीन करो कि 1 साल पहले ऑडिटर जनरल ने पाकिस्तान रेलवे में कमोबेश 8 अरब रुपए के गबन या बेजाब्तगियों की निशानदेही की थी। अच्छा। लेकिन उस रिपोर्ट के बाद आज तक किसी मामूली अफसर से लेकर वजीर रेलवे तक यानी कार्रवाई करना तो दूर की बात है, उससे जवाब तलबी तक नहीं की गई। इन्हीं लोगों के लिए तो अबीर अबू जरी कह गए हैं ना कि पुलिस नु आखा रिश्वत खोर ते फायदा की।
ਮਗਰੋਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਟਕੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ 109 ਵਿੱਚ ਫੜ ਦੇਣੇ ਤੇ ਫੜਦੇ ਰਹਿਣ 752 ਜੜ ਦੇਣੇ ਤੇ ਜੜਦੇ ਰਹਿਣ ਹਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ ਝੜ ਦੇਣੇ ਤੇ ਝੜਦੇ ਰਹਿਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੜ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸੜਦੇ ਰਹਿਣ ਮੈਂ ਜੇ ਚੀਕਾਂ ਪਾਵਾਂ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ये सिस्टम चल रहा है आजकल हर महकमे का। और रह गई रेलवे की बात तो मेरा ख्याल है दुनिया में वाहिद हमारी रेलवे है जिसका 500 इंजन खड़ा है खराब। कोई पूछने वाला नहीं कि ये किस तरह खराब हो गया, इसने ठीक कैसे होना है, इसका बेड़ा गर्क करने वाला कौन है। यार यकीन करो गिद्धों की तरह नोचा है, गिद्धों की तरह हम लोगों ने रेलवे को, और कोई पूछने वाला नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर कोई अफ्रीकी मुल्क भी, बिल्कुल गैर मुहज़्ज़ब मुल्क जिसमें कोई कानून नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पर भी ये मुमकिन नहीं नजर आता है कि 500 रेलवे इंजन आपका बेकार खड़ा हो और जवाब तलबी करने वाला कोई ना हो, कोई किसी से सवाल ना पूछा जाता हो कि हुजूर वाला ये इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा कि हमने 50 रेलवे इंजन जो चीन से इंपोर्ट किए थे वो इसलिए बेकार खड़े हैं कि हमने टाइम पर उनके एयर फिल्टर नहीं तब्दील किए। हाय हाय हाय, चंद रुपए का एयर फिल्टर नहीं चेंज किया और करोड़ों रुपए का इंजन साख उठ के मार दिया। और इसी तरह जो अमेरिका से हमने 17 इंजन इंपोर्ट किए थे वो इसलिए आज नकारा खड़े हैं कि उनमें घटिया मोबाइल इस्तेमाल किया गया था। रेलवे वालों ने तो रेलगड्डी को बांदर भी नहीं समझा यार। मदारी अपने बांदर की बच्चों से ज्यादा इसलिए हिफाजत करता है कि उसे पता होता है कि ये बांदर से ही कमा के मैंने अपने बच्चों का पेट पाला। बिल्कुल। अच्छा, और जो चंद एक गिनती के रेलवे के अफसरान में ये एहसास पाया जाता है ना कि जब तक रेलवे का पहिया चलता रहेगा तो उनका रिस्क भी लगा रहेगा, वो ये बेचारे कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तौर पर कोई ना कोई रास्ता तलाश किया जाए कि रेलवे को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए। इन हालात में भी, इन यानी बदतरीन हालात में भी, वो उनका कहना ये है कि हम जो भी कोशिश करते हैं वो जो वजीर रेलवे साहब हैं वो उसको उसमें टांगड़ा देते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं आइडिया। मसलन आजकल ये एक कोशिश हो रही है कि सबसे बड़ा जो रेलवे का जरिया, आमदन का जरिया है, वो हमेशा से ही मालगाड़ी रही है। अब रेलवे के चंद अफसरान का मंसूबा ये है कि उनके जो बड़े क्लाइंट्स हैं जो माल बर्दारी का काम लेते हैं जैसे PSO है, दीगर है, उन 8 मुंतखब कस्टमर से वो ये गुफ्तो शनीद कर रहे हैं कि आप हमें कुछ पैसे एडवांस दे दें ताकि हम अपने 100 इंजन मुरम्मत करवा सकें। तो खबर ये है कि इस पर भी वजीर रेलवे को एतराज है। यार कहीं वजीर रेलवे की छेड़ तो नहीं इंजन। हाँ हाँ, हमारे महल्ले में एक चाचा मीदा होता था, उसे लड़के छेड़ा करते थे, ओ पुराने इंजन है। वो आगे से जोर जोर से गालियां निकालता था, तेरा प्यो इंजन है, तेरा दादा इंजन है। ये वजीर मासूम है, किसी बात पे चिढ़ते भी नहीं है, मीडिया चीख रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है, कई यानी नित नए स्कैंडल आए रोज सामने आते हैं, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वैसे एहतियातन उनको किसी दिन मिल के देख लो, वो है इंसान या कुछ सैलों से चलने वाला खिलौना है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। कहीं ये ना हो कि उनके साथ सलाम ले तो उनकी टार्च जल जाए। यार जुनैद, ये जो टेलीफोन आते हैं मुख्तलिफ कंपनियों से, मैं इनसे बहुत अक्का हुआ हूं यार। तुम एक दफा मुझे पूरी लिस्ट दे दो, तुम किस किस से अक्के हुए हो। हर वक्त तुम अक्के ही रहते हो। पहला नाम तो तुम अपना लिख लो। नहीं, जुर्रत करके बताओ पहला नाम किसका लिखूं, हिम्मत करो जरा। यार बात सुना करो, मजाक डाया। अच्छा चलो बताओ क्या। हफ्ता हो गया मुझे एक कंपनी फोन कर रही है जी, गाड़ी में ट्रैकर लगवा ले भाई साहब। पहले फोन पे मैंने उसे समझाया कि जनाब मेरे पास गाड़ी नहीं। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद उसका फिर फोन आ गया, फिर कोई और बंदा कर रहा है। उनको ये भी नहीं पता होता कि ये बंदा भुगत चुका है हमारा साथ वाला, हम ना इसको करें। फिर कहता है जी गाड़ी में ट्रैकर लगवा ले। फिर मैंने कौड़ा कुट करके उसे नहीं बताया कि मेरे पास गाड़ी नहीं है। अच्छा। मैंने कहा भाई जी मैंने ट्रैकर नहीं लगवाना। अच्छा। यार फिर दूसरे दिन फोन आ गया, भाई जी गाड़ी में ट्रैकर लगवा ले। मैंने कहा भाई जी पहले आप मुझे स्कूटर के पीछे गाड़ी लगवा दे, फिर मैं उसमें ट्रैकर लगवा लूंगा। और मैंने कहा जनाब मेरे पास स्कूटर है। अच्छा। यार फिर शाम को उसी बंदे का फोन आ गया, भाई जी ट्रैकर लगवा ले। मुझे ऐसे लगना शुरू हो गया कि ट्रैकर मेरी छेड़ है। और मैंने कहा इसका फायदा क्या है ट्रैकर का? अच्छा। कहता जनाब आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी तो आपको इतला हो जाएगी कि आपकी गाड़ी इस वक्त किस जगह पे है। अच्छा। मैंने कहा यार मेरा स्कूटर को लेके जाएगा तो चोर मुझे ढूंढता फिरेगा कि इसका मालिक इस वक्त किस जगह पे है।
क्यों? उसने फोन कर करके मुझे पूछना, ये चल तो पड़ा, इसकी ब्रेक कहाँ है? ये जो चीज ब्रेक की जगह लगी हुई है वो मैं बड़ी दफा दबा रहा हूँ, ये खड़ा नहीं हो रहा। और मैंने कहा मैंने इसको 2-3 दफा खुद बाहर चोरों के लिए डिस्प्ले किया है। डिस्प्ले किया, ये नहीं चोरी हो रहा, इसका नहीं गाहक आ रहा चोरी के लिए। नहीं यार, ऐसे ऑन द सीरियस नोट हमारे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है कि ये तो हमें पता चल गया है, हमारी जो कंपनीज हैं, जो यानी बिजनेस की दुनिया के लोग हैं, उनको ये तो पता चल गया है कि टेली मार्केटिंग बड़ी काम की चीज, लेकिन हमने मजमूई तौर पर पूरी सोसाइटी में ये अवेयरनेस नहीं दी कि आपके राइट्स कहां तक हैं। यानी वो कहा जाता है ना कि आपकी स्टिक घुमाने की आजादी वहां पर खत्म हो जाती है जहां से दूसरे की नाक शुरू होती है, लेकिन हमने उन हदूद का जो तायुन है वो नहीं किया कि आप किस हद तक टेलीमार्केटिंग कर सकते हैं, कहां पर डिस्टर्बेंस होती है, सुबह दोपहर शाम देख लो, मैसेजिंग के जरिए अब तो खुले हम आपको फोन करके अपना तारुफ करवाते हैं, बार बार आप मना करते हैं कि भाई मैं इस वक्त मीटिंग में हूं, मैं आपकी कॉल नहीं ले सकता, लेकिन वो लोग हैं कि दीदा दिलेरी है, उनकी इस्तकामत कहना चाहिए, फोन पे फोन करते चले जाते हैं, फोन पे फोन करते चले जाते हैं। यार ये पिछले दिनों जब डेंगी की फिल्म बड़ी हिट हुई थी ना, बार बार मुझे मैसेज आ रहा था डेंगी स्प्रे करवा ले, डेंगी स्प्रे, मैं डिलीट कर करके फावा हो गया, फिर आ जाए डेंगी स्प्रे करवा ले। ईमान से मैं डर गया था, मैंने समझा कहीं ये डेंगी खुद तो नहीं SMS कर रहा। हाँ हाँ, जिस तरह का स्प्रे हुआ है, डेंगी को बड़ा पसंद था वो स्प्रे पीना। सर वैसे हर सिविलाइज सोसाइटी में इस हवाले से बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटीज को तो एक तरफ रहने दो, हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान में अभी एक उन्होंने तजर्बाती तौर पर एक कानून पर अमल करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि एक सेंडर जो है वो एक दिन में 100 से ज्यादा मैसेज नहीं कर सकता, और इस कानून के बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं उन्हें। और हमारे यहाँ टैंकी साफ करने वाला इको नंबर पे एक दिन में 100 मैसेज कर देता, और फिर आप अक के टेलीफोन बंद करने पे मजबूर हो जाते। लेकिन बाज़ औक़ात इंसान अपना फोन बंद करना, स्विच ऑफ करना अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको साइलेंट पे करना अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी कोई इमरजेंसी इस तरह की पोजीशन होती है, या आपका कोई अजीज हॉस्पिटल में होता है, आप ये अफोर्ड नहीं करते कि आप अपना सेल बंद कर दें। उस हालत में जब आपको आधी रात को आप सोए हो, कोई मैसेज आ जाए या कोई कॉल आ जाए, वो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होती है। अल्लाह माफ करे, इस वजह से तो मैं कई दफा फैंटी भी खा चुका। यार बार बार मैसेज की बेल हो रही थी, और मैं फिर अचानक उसको पढ़ना शुरू हो जाता था। अच्छा, पर जाई तुम्हारी कहती है खैर है, केड़ी फूफो के मैसेज आ रहे हैं? मैंने बताया जी फूफो के नहीं, चचा डेंगी के मैसेज आ रहे हैं। वैसे ये बेसिक कंज्यूमर राइट्स की भी वायलेशन है। इसी हवाले से तो ये सिविलाइज्ड सोसाइटीज जो हैं, इसी हवाले से तो कानून साजी करते हैं। यस ऑफ कोर्स। यार मेरी थोड़ी सी भी अंग्रेजी निकलती है तो आपकी हंसी निकल जाती है। तुम लोग भी टेली मार्केटिंग वालों की तरह मेरी दिलायारी करते हैं। ये टेली मार्केटिंग वाले भी गरीब बंदे को मैसेज भेज देते हैं जी फलाना 5 स्टार होटल में बूफे इतने रुपए। उस मस्कीन के पास सूखी रोटी नहीं खाने के लिए उसको बूफे के मैसेज भेज भेज के उसका दिल दुखा रहे हैं। ऐसे बंदे को नवी करोला के मैसेज कर रहे होते हैं जो बेचारा सवेरे बस के साथ लटक के काम पे जाता है। बिल्कुल दिल दुखाना शुरू किया हुआ इन लोगों ने। और एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन टेली मार्केटिंग वालों का कोई अता पता नहीं होता, कोई सॉलिड किस्म का एड्रेस नहीं होता। वो आपको किसी कोई चीज लेने पर आमादा कर लेते हैं, अगर वो चीज खराब निकलती है वो इस तरह की जुबानी किस्म की एक वारंटी भी आपको दे देते हैं। उसके बाद जब वो चीज खराब हो जाती है, आप उस नंबर पे कॉल करते हो, वो नंबर आपको बंद मिलता है। जिस दुकान से आपने सौदा खरीदा होता है वो दुकान अदम अदायगी की वजह से बंद हो चुकी होती है। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अजीजा बिस्मिल्लाह करें। कुछ खाने के लिए मंगवाया है? नहीं, हस्बैंड आग शुरू करने लगे हैं। तो कर लो शुरू। अच्छा जी, लाहौर से हमें शाहीन खालिद लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। DHA EME सेक्टर लाहौर एक एलीट सोसाइटी समझी जाती है। वहाँ का सीवरेज ना होने के बराबर है। सक्शन पाइप्स का इस्तेमाल किया जाता है और गंदा पानी खाली प्लॉट्स में फेंक दिया जाता है, जो डेंगू और मलेरिया की बेहतरीन रिहाइश गाह बन जाते हैं। कई बार हुकाम की तवज्जो दिलाई मगर कोई नतीजा नहीं निकला। शायद ये इलाका खादमे आला की एंटी डेंगू मुहिम में नहीं आता। शायद ये भी हो सकता है कि इस सोसाइटी के साथ डेंगू और मलेरिया के लिए अलग कॉलोनी बन रही हो। अजीज साहब, इन्होंने आज सुबह की लेटेस्ट वीडियो भी भेजी है साथ दिखाने के लिए। दिखाओ जरा। ये लें, वो देखो
گھر سے سیوریج نکال کے ساتھ والے پلاٹ پہ پھینک رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ لاہور کے سب سے زیادہ پوش علاقے کا یہ حال ہے. اب بتاؤ کون سا سپرے یہاں پہ کام آئے گا؟ سپرے کر کے بھی دیکھ لو، جتنا جتنا ادھر موٹا مچھر بن گیا ہوگا، پاس سائیکل کھڑی ہے، تم نے سپرے کرنے، مچھر نے سائیکل پکڑ کے نکل جانا. ہائے ہائے ہائے، بہن جی ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مچھر کو اپنی مصیبت ڈال دے، اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا جی، اگلی میل ہمیں جدہ سے آئی ہے. سجاد حیدر لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی جان عزیزی. وعلیکم السلام جناب سجاد صاحب، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ چاچو جنید اور باجی ناجیہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ چاچو جنید بہت زیادتی کرتے ہیں. اتنے سالوں میں میں نے کبھی آپ کے سامنے پکوڑے یا فروٹ چاٹ کچھ بھی نہیں دیکھا. ہائے 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 ہائے، دیکھو کدھر جدے بیٹھے ہوئے بندے کو پکوڑوں کا احساس ہے اور تم ساتھ بیٹھے ہوئے. لیکن ایک بات ہے بھائی عزیزی، اتنے ظلم کے باوجود آپ اتنے تگڑے کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ بتاؤ نا. اصل میں 2-3 دفعہ میں نے ڈاکٹر کو چیک کرایا، وہ کہتا ہے کہ جتنا تمہیں غم زیادہ ہوتا ہے تمہارا ویٹ بڑھتا ہے. اس بیماری کو کہتے ہیں ہنگرنیزیا. جتنا غم زیادہ ہوتا ہے بندہ اتنا ہی پھولتا جاتا ہے. اس بارے میں شاعر نے بھی کہا ہوا ہے نا، ہم تمہاری یاد میں سکھ سکھ کے ہاتھی ہو گئے. ہائے ہائے، ہم تمہاری یاد میں سکھ سکھ کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھٹے رستم کے ساتھی ہو گئے. اگلی میل ہمیں خواجہ عاصم نے رحیم یار خان سے لکھی ہے. السلام علیکم پیاری حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام خواجہ صاحب. عزیزی صاحب، آپ ویسے تو بالکل جوان لگتے ہیں، مگر ایک بات ہے کہ میں تو آپ کو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں اور آج خود 30 سال کا ہو گیا ہوں. اور جنید صاحب کو تو ہم نے ابھی ہی جوانی میں دیکھنا شروع کیا ہے. اس عمر کی گتی کو آپ خود سلجھا دیں. اصل میں خواجہ صاحب میں نے بطور چائلڈ سٹار یہ کام شروع کیا تھا، مگر چھوٹا سا ہونے کے باوجود منہ میرا اتنا ہی بڑا تھا جناب، اس لیے انہوں نے مجھے ہیرو کے ابے کا رول دے دیا تھا. آپ کو وہ سین یاد ہوگا جب ہیرو کا ابا یعنی میں تھیلا پکڑ کے سبزی لینے جاتے ہیں. اصل میں اس تھیلے میں فیڈر تھا جناب، میں سبزی لینے نہیں تھا جا رہا. ڈائریکٹر نے سوچا تھا کہ چونکہ یہ ہے تو بچہ اس کے ساتھ فیڈر ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ میں ہر شاٹ دینے کے بعد رونے لگ جاتا تھا، پھر مجھے فیڈر دیتے تھے، میں چپ کرتا تھا. ویسے یار جنید اس وقت میرے دل پہ چھریاں چلتی ہیں جب مجھ سے 20-25 سال بڑا بندہ مجھے مل کے کہتا ہے یہ صاحب آپ کو تو بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں. 100 سال کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. اچھا جی، اگلی میل ہمیں موصول ہوئی ہے سید معاذ احمد لاہور سے. انہوں نے ایک تصویر بھی بھیجی اور ساتھ میسج ہے. ڈیئر بھائی عزیزی، آپ ہر وقت پاکستان میں مہنگائی کی بات کرتے ہیں. امریکہ میں بھی اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ اپنی شادی کے لیے اس نے ابھی سے محنت شروع کر دی ہے. تصویر دیکھیں، یہ دیکھیں. ہائے 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 ہائے، دیکھیں یار، اتنا چھوٹا سا بچہ جو بیچارہ ٹافی نہیں کھول سکتا وہ گڈی کا ٹائر کھول رہا ہے. ایک منٹ ذرا، یار یہ بچہ انگریز ہے اور ٹائر کا چکڑ بتا رہا ہے کہ گڈی پاکستانی ہے. لو بھائی، یہ بچہ شادی کے لیے محنت نہیں کر رہا. یہ انگریزوں نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو تربیت دینا شروع کر دی ہے کہ پاکستان کی ٹبری کیسے ٹیٹ کر دی. یہ کس نے بھیجی ہے یہ میل؟ یہ بھیجی ہے جی سید معاذ احمد نے. معاذ صاحب پتہ کریں جناب اس تصویر کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ کو ہمارے خلاف سازش لگ رہی ہے مجھے حیور. اچھا جی، اگلی میل ہمیں جنید عالم اسلام آباد سے لکھتے ہیں. ہیلو حسب حال ٹیم، آپ کا شو بہت اچھا ہے لیکن مجھے آپ لوگوں پر کچھ تنقید کرنی ہے. کرو جناب کرو تنقید. جنید صاحب آپ کا نام ہی جنید ہے، یہ ایک جنید پہلے نہیں ٹکرا ہوا ہمیں. آپ بھی کر لیں تنقید. عزیزی صاحب، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ہم ینگسٹر جنہیں یہ ممی ڈیڈی کہتے ہیں ان کا مذاق اڑائیں. یہ وہ والے ہیں ممی ڈیڈی. ہم فیشن کے ساتھ چلتے ہیں اور اس میں کوئی برائی نہیں. اور جنید صاحب، آپ بہت مغرور لگتے ہیں جب آپ اپنی گفتگو میں ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پلیز ڈونٹ مائنڈ گائز. جنید صاحب کو سمجھاؤ کہ جب میں ہم کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو خدا میرا مطلب سیدھا سیدھا ہم ہوتا ہے کہ ہم تینوں کی یہ سوچ ہے یا ہم خدا نہ خواستہ اس میں سے میرا خیال ہے کہ غرور کا تو کوئی پہلو نہیں نکلتا یار. آپ بھی جنید صاحب کو سمجھائیں کہ میں کو ممی ڈیڈی بچوں کے اوپر
تنقید اس طرح کی نہیں کر رہا ہوتا کہ ان کا مذاق اڑاتا ہوں. میں تو اس لیے تنقید کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ اپنا کلچر اپنائیں. یہ جو آپ سپائکس بنا لیتے ہیں نا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. انگریز کے فیشن کے ساتھ کیوں چلتے ہیں؟ ہمارے اپنے فیشن مر گئے ہوئے ہیں. فیشن وہ ہونا چاہیے جو ہماری اپنی ثقافتی حدوں میں رہے اور مہذب لگے. بالکل بالکل. اچھا سپائکس یا تو ساتھ ادھر پھر لکھوا لیا کرے نا کہ یہ بال کس وجہ سے کھڑے ہو گئے. اور یہ جو آج کل بچے وہ میں جس پینٹ کا ذکر کرتا ہوں بالکل نیچے ہوئی ہوتی ہے اور گھر میں پھر رہے ہوتے ہیں. یہ کون سا فیشن ہے یار؟ بالکل بالکل. اچھا جی اگلی میل ہمیں کراچی سے موصول ہوئی ہے تصویر کے ساتھ جن صاحب نے بھیجی. انہوں نے نام نہیں لکھا. کہتے ہیں سلام ڈیئر عزیزی جنید and ناجیہ. وعلیکم السلام. میں ریلوے میں ملازم ہوں جس کی وجہ سے میں اپنا نام نہیں بتا سکتا. نہیں ریلوے والے آج کل اپنا نام نہیں بتا سکتے جو ریلوے کے ساتھ ہو گئی. بالکل. ہمارے پیارے وزیر بلور صاحب نے جس محنت کے ساتھ کام کیا ہے اور اس محنت نے ریلوے کے ساتھ یہ کیا ہے مجھے یقین ہے کہ صرف ایک ہی ذہین شخص ہے جو لوگوں کو ایکسپلین کر سکتا ہے. چل ذہین شخص انہوں نے بھی مجھ پہ بوجھ ڈال دیا. بتائیں جی ایکسپلین کرتے ہیں. اب کیا جو دیا انہوں نے کہا جی تصویر دیکھ کے ایکسپلین کر دیں. دکھائیں تصویر. یہ دیکھیں. اللہ پھڑو ادھر تو دیکھو بلور صاحب نے کھوتا ہی خوہ میں پھینک دیا. ڈونکیز تھرو ان دا ویل. یہ تمہاری ذہانت کی وجہ سے انہوں نے تمہیں ایکسپلین کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ جو کنویں میں گرا ہوا ہے نا اس کا درد اور تکلیف صرف تم ہی سمجھ سکتے ہو. یہ میں خوبی ہے کہ وہ انسانوں اور جانوروں کے دکھ کو یکساں سمجھتا ہے. میں تو اڑتی ہوئی چڑی دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کو اس کے چڑے نے مارا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایک پر سے اڑ رہی ہوتی ہے دوسرے پر سے رو رہی ہوتی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہے خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.